السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ہم الحکمہ چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک پوری سورہ، جسے سورہ نحل کہا جاتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح دیگر دوسری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے شہد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور شہد کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ شہد کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو شفا ہمیشہ بیماری کے لیے ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے شہد کو شفا کہا ہے، اور شہد کے اندر انسان کی پوری باڈی، پورا وجود جو ہے، کوئی بھی اگر جسم پر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے یہ شہد کافی ہے، یعنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے شہد کافی ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، وہ کینسر کی ہو، شوگر کی ہو، یا کوئی اور بیماری ہو، حتیٰ کہ فالج جو ہے، فالج جیسی بیماری، شوگر جیسی بیماری، کینسر جیسی بیماری کا علاج شہد کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ شہد خالص ہو۔ بہت سارے ایسے ڈاکٹر حضرات جو شوگر کے مریضوں کو وہ منع کرتے ہیں کہ آپ شہد نہ کھائیں، تو ہم ڈاکٹر کی اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ شہد کے قریب نہ جائیں، شہد نہ کھائیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی مرض ہے، اس مرض کا علاج اللہ نے شہد کے اندر رکھا ہے۔ مثلا جسمانی طور پہ انسان کمزور ہے، تو جسمانی کمزوری کو دور کرنے کا بہترین اگر کوئی علاج ہے تو وہ شہد ہے۔ دماغی کمزوری کا علاج، دماغ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، دماغی کمزوری کا علاج اس شہد کے اندر ہے۔ اور اسی طرح آنکھوں کی بینائی کا اگر مسئلہ ہے، ہم مہنگے وہ ڈراپ وہ تو استعمال کرتے ہیں، اگر ہم خالص شہد وہ آنکھوں کے اندر تین سلائی اگر لگا لیں، حقیقت بات ہے کہ آنکھوں کی تمام امراض کے لیے یہ شہد مفید ہے، یعنی آنکھوں کی تمام امراض کو دور کرنے کے لیے شہد کافی ہے۔ شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اگر جسم کے اندر اگر چربی بن رہی ہے تو اس کے لیے یہ شہد بہت مفید چیز ہے۔ 1 چمچ شہد کا لے لیں، اور اس کے ساتھ لیمبو، 1 چمچ لیمبو کا پانی لے لیں،
तो नीम गर्म पानी के अंदर इन दोनों को आप मिक्स करके पी लें। इंशाल्लाह जो आपके जिस्म के अंदर चर्बी बन रही है, चंद दिनों तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे। और इसी तरह अगर गले के जितने अमराज हैं, मसलन खांसी का मसला है या आवाज़ बैठ रही है या गले के अंदर दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप इसी तरह नींबू और शहद, यानी शहद का 1 चम्मच और 1 चम्मच नींबू का पानी, ये नीम गर्म पानी के अंदर आप डालकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शहद के इंशाल्लाह गले के जितने अमराज हैं वो इंशाल्लाह इस शहद की वजह से वो भी ठीक हो जाएंगे। मसूड़ों का अगर मसला है, दांतों का अगर मसला है, तो इसी तरह 1 चम्मच शहद का और 1 चम्मच नींबू के पानी का, तो इन्हें आप मिक्स कर लें और उंगली की मदद से आप अपने दांतों पर मलें। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ये मसूड़ों से अगर खून आ रहा है या मसूड़े फूले हुए हैं या दांतों का कोई और मसला है, यानी तकलीफ़ हो रही है, इंशाल्लाह चंद मिनटों में ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपका वजूद भारा हो रहा है, यानी आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं या मोटापे का आप शिकार बन चुके हैं, मोटापे की वजह से आप परेशान हैं, तो ये आप 1 माह तक ये इस्तेमाल कर लें। यानी शहद 1 चम्मच ले लें या 2 चम्मच ले लें। इसी तरह नींबू का पानी जो है वो भी जितनी मिकदार में आप शहद लेंगे उतनी ही मिकदार में आपने नींबू का पानी लेना है। अगर आपने शहद 1 चम्मच लिया है तो फिर नींबू का पानी भी 1 चम्मच, अगर शहद 2 चम्मच है तो नींबू का पानी भी आप 2 चम्मच ले लें। तो नीम गर्म पानी के अंदर 1 गिलास पानी नीम गर्म, यानी 1 गिलास पानी का ले लें, उसके अंदर आप मिक्स करके तो इसे पी लें। तो ये बहुत आला किस्म का एक मशरूब भी है, शरबत भी है। तो ये आस्ता आस्ता आराम से इन्हें पिएँ, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, अगर गुर्दे के अंदर या मसाने के अंदर पथरी का अगर कोई मसला है तो उन दोस्तों के लिए भी ये बेहद मुफीद है। तो इसके अंदर अगर आप कलवंजी पीस कर डाल लें तो वो और ज़्यादा बेहतर है। मसलन अगर आप चाहते हैं कि फिलफौर गला बैठा हुआ है, आवाज़ नहीं निकल रही, तो आप चाहते हैं कि फिलफौर हमें आराम मिलना चाहिए, तो फिर आप ऐसा करें, घर के अंदर ये शहद और कलवंजी का माजून बना कर रखें। तो ये माजून जो है, यानी शहद और कलवंजी का माजून अपनी उंगली की मदद से गले के अंदर लगा लें, इंशाल्लाह फौरी तौर गले का वो मसला वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप आधी चम्मच ये शहद और कलवंजी का जो माजून है तो ये अगर आप इस्तेमाल कर लें तो पेट के जितने अमराज हैं, मैदे का मसला है, गैस का मसला है, अगर अंतड़ियों के अंदर ज़ख़म है तो ये उनके लिए भी मुफीद है। तो शहद बहुत आला चीज़ है। तो ये छोटे और बड़े की कोई कैद नहीं है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि छोटा शहद लेना चाहिए या बड़ा शहद लेना चाहिए, नहीं, छोटे बड़े की कोई कैद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ शहद के बारे में फ़रमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, शहद के अंदर शिफा है, वो छोटा हो या बड़ा हो, अलबत्ता खालिस ज़रूर हो। तो अगर आप इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और मैं आप दोस्तों से, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आप दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।